Hello student. Today we are discussing about ratio and proportion problems. We had already discussed in previous videos so many examples of ratio and proportions. I hope that you understood very well. So let us move on first questions. Okay, if AB A is to B is equal to 6 is to 7, B is to C 8 is to 9 and find the A and B and C. ये 1990 में पूछा गया सवाल है. ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? So I write here A is to B is equal to 6 is to 7, B is to C is equal to 8 is to 9. और क्या फाइंड आउट करने पूछा है? A is to B is to C. तो स्टूडेंट सिंपल क्या कीजिए यहाँ पे, A is to B is equal to 6 is to 7. Clear? So A is to B, B is to C. Okay, so simple. 6 8s are 48. Okay, and 7 9s are 63. 8 6 are 48, 7 9s are 63 and 7 8s are, that is a 56. That is a 56. So this value of A, this value of B and this value of C. क्लियर हो गया किस तरीके से हमने सॉल्व किए? सो 6 is to 8 48, 7 9s are, बहुत ईजी है. ओके, this is the second problem. A is to B and B is to C. Again find out the A, B, C. Okay, first I write here the same value. A is to B 5 is to 14, B is to C 7 is to 3. Okay, अब क्या फाइंड करने को कहा है? A is to B is to C. Okay, so A is to B बराबर 5 is to 14, B is to C is equal to 7 is to 3. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 7 जा 35 and the last term 14 into 3 42. Okay, the first value 5 7 जा, last value 14 3 जा 42 and second value 14 7 जा, so 14 7 जा 98. ये क्लियर हुआ? सो 35 value of A, 98 value of B and 42 value of C. ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 7 जा 35, 14 3 जा 42, 14 7 जा 98. इस तरीके से आपको सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो. कितना समय लगेगा? 10 या 15 सेकेंड. ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2012 में पूछा जा चुका है. चलो और प्रॉब्लम करते. सो एग्जाम्पल नंबर 3. अगेन सिमिलर, A is to B, B is to C and find the ABC. Okay, so A is to B 2 is to 3, B is to C 4 is to 5. Okay, so I write here A is to B is equal to 2 is to 3, B is to C is equal to 4 is to 5. Okay, find the value of A is to B is to C. So 4 is to 2, 4 is to 2, that is the 8, and this is the last 3 is to 5, that is the 15, and second value
3:4, that is the 12. कितना सिंपल है, दिस वैल्यू ऑफ ए, दिस वैल्यू ऑफ बी एंड दिस वैल्यू ऑफ सी, ए इज टू बी इज टू सी। कितना इजी है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए और आंसर निकालिए ए बी सी। और ये कब पूछा गया था, 2001 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम बट अल्फाबेट्स vertical value change, that is the p q q r, previous problem a b c. Okay, so this problem also easy, p is to q 3:4, q is to r is equal to 8:9. Clear? So I write here p is to q, q is to r, so that is the first term. 3:8, that is the 24, is to, that is the last term. 4:9, that is the 36, and this is the second or middle term. 8:4, so that is the value of p q and r. समझ में आया कितना इजी है इसको सॉल्व करने का तरीका? दैट इज दिस इज द इजी ट्रिक फॉर सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. स्टूडेंट यहाँ पे 1 मिनट ध्यान देना. अब यहाँ पे देखो 24, 32, 36 हो सकता है कि ऑप्शन में ये वैल्यूज़ ना हो, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ये 64 को हम कैसे लिखेंगे? 6 4 ज़ा. 32 को कैसे लिखेंगे? 4 8 ज़ा. एंड 36 को कैसे लिखेंगे? 9 4 ज़ा. क्या ऐसे लिख सकते हैं? 24 को 6 4 ज़ा, 32 को 8 4 ज़ा और 36 को 9 4 ज़ा. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 4 4, तीनों में 4 कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 4 कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे एक नया रेशो मिलेगा 6:8:9. क्लियर हो गया? यहाँ से 4 4 4 कैंसल आउट, सो 6 8 9. So that is the value of P, that is the value of Q और that is the value of R. तो कभी कभी ऑप्शन को भी देख के हमें सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5, A is to B, B is to C. Again find out the ABC. So आप कुछ मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए. ओके, so student I write here A is to B, B is to C. 5 7 6 1, so that is the first. 5 6 30, and that this is the last term, that is just 7 into 1, that is the 7, and second term, that is just 6 into 7, that is the 42. 30 42 and 7. So this is our answer. That is the value of A, that is the value of B and C. क्लियर हो गया?
सो ए इज़ टू बी इज़ टू सी की प्रॉब्लम काफ़ी सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और मुझे लगता है कि इतने प्रॉब्लम काफ़ी हो गए हैं, है ना स्टूडेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई चैलेंजेस है, तो कमेंट सेक्शंस बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, मैं उसको फिर रिजॉल्व करूँगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट। यह आपका होमवर्क पार्ट है। देयर आर 6 क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द ABC सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी। So hello student, this is the second concept. Okay, we discussed A is to B is to C, but here A is to B, B is to C and C is to D. A is to B, B is to C, C is to D. There are 4 proportional: first, second, third and fourth. So how we solve this kind of problem, right? So firstly I write here all the values. A is to B, B is to C, C is to D. Okay, next, okay, I write here A is to B, B is to C and C is to D. Okay, so again 1, 3 and 5. 1, 3 and 5. 5 3 is 15. So here 15 is 2. Okay, and this is the last. 2 is to 4 is to 6. 4 2 is 8, 8 6 is 48. Okay, so this is the value of A and this is the value of D. Okay, so A के लिए this arrow and D के लिए, and first A and that is the last. Okay, अब बचा हुआ B और C. So student, B के लिए कैसा करें? That is the second value B. So 2 से 3, then 3 से 5. 2 से 3, then 3 से 5. क्या लिखा यहाँ पे? 2 से 3 and 3 से 5. So 5 2 is 10, 10 3 is 30. क्लियर हो गया कैसी वैल्यू आई तो? सो ये फार्मूला लगाना है, 2 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? सो दैट इज 2 4 देन 5, 2 4 देन 5. सो यहाँ पे 2 is to 4 then 5. So 5 2 is 10 and 10 4 is 40. So this value of B and this value of C. So A is to B is to C is to D. A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 30, C की वैल्यू 40 and D की वैल्यू 48. So first A and D, then second and third. स्टूडेंट एरो पे ध्यान, एरो पे फोकस कीजिए कैसे सॉल्व किए तो, ठीक है। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A इज़ टू D, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूँ A इज़ टू D की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे? A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 15, और D की वैल्यू कितनी है? 48। क्लियर हो गया। तो A इज़ टू D की वैल्यू पूछा जाए तो A की वैल्यू कितनी है? 15 एंड D की वैल्यू कितनी है? 48। अगर इसी तरह B और C की वैल्यू पूछे तो B की वैल्यू है 30 और यहाँ पे है 40। क्लियर हो गया।
सो ए की वैल्यू 15:48 एंड बी इज टू वैल्यू 30 और 40। ए बी सी डी की वैल्यू ए इज टू डी, बी इज टू सी। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। नोट करो इसको कॉपी में और अच्छे से इस पे ध्यान देना। ओके, मैं और प्रॉब्लम करवाता हूँ आपसे। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। A is to B, B is to C, C is to D, फाइंड आउट द A B C D। ओके, ये प्रॉब्लम आपके सामने दिया है, राइट। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सो स्टूडेंट, आई राइट एज इट इज़ वैल्यू A is to B, B is to C, C is to D। A is to B is equal to 3 is to 2, B is to C is equal to 4 is to 7 and C is to D is equal to 5 is to 9। So find out the A, B, C and D। So how we will solve? हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या बताया था प्रीवियस प्रॉब्लम में? दिस इज द फर्स्ट एरो एंड दिस इज द लास्ट एरो, राइट। सो इस एरो से हम जाएंगे और इस एरो से हम जाएंगे। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे कितना आएगा? 3, 5 and this is the last term, 2 into 7 into 9। क्लियर? सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब रिमेनिंग क्या है? बी एंड सी। रिमेनिंग क्या है? बी एंड सी। ओके, सो स्टूडेंट, this is the second number, so start from here, then here, then here। clear हो गया? this is the second number, start from here 2, 4 and 5। clear हो गया? so I write here 2, 4 and 5। okay, यहाँ तक बात क्लियर होगी? एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन हियर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 देन मूव टू 7 एंड मूव टू 5। आई राइट हियर 2 into 7 into 5। क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट, सेकेंड एंड दिस इज द सी नंबर। सो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 7 9 जा 63, 63 into 2 that is just 63 into 2 126। क्लियर हो गया? सो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ए, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू बी, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सी एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू डी। So A is to B, B is to C and C is to D। ओके स्टूडेंट, सो इसे इस तरीके से हमें सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? A is to B, B is to C कैसे निकाला जाता है। ओके, चलो एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। अगेन स्टूडेंट, फाइंड आउट द ए बी सी डी एंड सेकेंड ए इज टू डी। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। कैसे लिखेंगे? सो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी, उसके जो रेशोज है हम यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रूल,
3 into 5 into 8, and this is the last. फोर इज टू 7:10. क्लियर हो गया? दिस इज द लास्ट. एंड सेकेंड टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, then move to 5, then 8. So 4:5 and is into 8. Then 4 move to 7 and 7 move to 8. क्लियर हो गया? आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? चलो. 5 3 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120. क्लियर हो गया? 5 4 ज़ा 20, 20 8 ज़ा 160. क्लियर हो गया? 7 4 ज़ा 28, 28 into 8. Here 224. 7 10 is 70, 70 into 4, 280. So this is the value of A, B, C and D. So first problem solve. What is the value of A, what is the value of B, C and D? Okay. So हमने यहाँ पे पहला सॉल्व कर चुके हैं. A is to B, इससे इसका आंसर हमने यहाँ पे निकाला है. क्या है? A is to B is to C is to D. लेकिन सेकंड क्या पूछ रहा है? A is to D. क्या पूछ रहा है? सेकंड A is to D. मतलब मीन्स कंपेयर किस में करना है? A एंड D में हमें कंपेयर करना है. किस में कंपेयर करना है? A इन. सो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? A is to D. कभी कभी इसे A डिवाइड बाय D भी कहा जाता है. अगर ऐसी वैल्यूज़ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 into 5 into 8 ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो. 4 into 7 into 10 हो गया? ऐसे भी लिख सकते हो. चलो अब यहाँ से कैंसिल लिखते. दिस 5 स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखना. हियर 5 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा. So 3 into 1 into 2, 1 into 7 into 2. सो स्टूडेंट यहाँ से अगेन 2 2 कैंसल, तो बचा कितना? 3 into 1 3, 7 into 1 7. सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3:7. ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. सो A is to D की वैल्यू कितनी आएगी? 3:7. किसे नहीं समझा ये वैल्यू? सिंपल कैलकुलेशंस था. ओके. सो आंसर 3:7. क्लियर हो गया? अगेन एक स्टेप है. किसी को मतलब यहाँ पे A is to D फाइंड आउट करना है. मतलब यहाँ पे क्या होगा? A डिवाइड बाई D. क्या होगा? A डिवाइड बाई D. सो A की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 120 एंड 280. सो A की वैल्यू 120 एंड D की वैल्यू 280. क्लियर है? सो यहाँ से 0 कैंसल आउट. बचा कितना यहाँ पे? 12 एंड यहाँ पे कितना बचा? 28. सो ये दोनों टर्म्स 4 से डिविजिबल होते हैं, हाँ या ना? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 4 ज़ा एंड 7 4 ज़ा. कर सकते हैं ऐसे सॉल्व. सो यहाँ से 4 4 कैंसिल होगा तो बचा कितना? 3 डिवाइड बाय 7 या फिर 3:7. इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहो तो.
ठीक है, आपको जिस स्टेप से जाना है उस स्टेप से जाओ। क्लियर हो गया? चलो आगे मूव करते हैं। So student, there are three problems, first, second and third, and find out the values a b c d and lastly a is to d. So those value you have to find out, and this is the main questions and this is your homework part. Okay, सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, कोशिश करो, ट्राई करो, आना चाहिए। और कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बनाते समय मैं आपके जो कंसर्न्स है, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ओके, चलो बाय। हेलो स्टूडेंट, so this is the first problem. Okay, if x is to y is equal to 7 is to 5 and find out this ratio. Okay, so how we solve? Firstly, x is to y is equal to 7 is to 5, right? So x is to y means x divided by y is equal to 7 by 5. That is the meaning of x is to 7 and y is equal to 5. So x की वैल्यू 7 and y की वैल्यू 5. ओके, सो फाइंड आउट क्या करना है हमें? 5x क्या फाइंड आउट करना है? 5x माइनस 6y minus 2x. So what is the value of x and what is the value of y? Simple put. So 5x की वैल्यू 7, 6 as it is, y की वैल्यू 5, 6 as it is, y की वैल्यू here y and here y value, that is 5, minus 2 as it is and x वैल्यू 7. क्लियर हो गया? x की वैल्यू 7 and y की वैल्यू 5. सो 5 7 ज़ा 35, 30, 6 5 ज़ा 30 and 7 2 ज़ा 40. So here 5 and here 60 and there are no any common. इन दोनों में कोई कॉमन नहीं निकलता क्योंकि 5 इज़ अ प्राइम नंबर. सो 5/16 इज़ आवर आंसर and that's why option B is the correct. That's why option B is the correct. Simple. What is the value of x? What is the value of y? So simple put in main questions and find out the solutions. Okay. चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. So example number second, x is to y is equal to 7 is to 5 and find the value of 5x minus 2y is to 3x plus 2y. So student, simple, x is to y is equal to 7 is to 5. Clear? So x divided by y is equal to 7 by 5. That is the meaning of x is equal to 7 and y is equal to 5. Okay, clear हो गया ये? What is the value of x and what is the value of y and how we derived? Okay, so find the value of 5x minus 2y, 3x plus 2y. हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है? जहाँ पे x है, जहाँ पे y है, वहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करना है. जैसे यहाँ पे 5 एज इट इज़, हियर x की वैल्यू 7 गिवन, माइनस 2 एज इट इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? दैट इज़ 5. सो अगेन यहाँ पे 3 एज इट इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 7 plus 2 and here y की वैल्यू 5, 7 5 ज़ा 35, sorry, that is a minus and 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21 plus 10,
So that is the 25 and that is the 31. So 25 divided by 31 is our answer, or there are no comma because 31 is a prime number. So option B is the correct answer, 25 divided by 31. क्लियर? कितना इजी प्रॉब्लम थे? चलिए और एक प्रॉब्लम ट्राई करते. So this is example number 3rd. Here A is to B is equal to 4 is to 1 and find the ratio. So what is the value of A and what is the value of B? First find out. Okay, so we write here 4 by 1. So what is the value of A? That is 4. What is the value of B? That is 1. So here A is equal to 4 and B is equal to 1. ओके, सो फाइंड आउट क्या करना, हमें रेशो करना है. कौन सा रेशो करना है? दैट इज द वैल्यू. ओके, सो a माइनस 3b टू a माइनस b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 4. 3 एज इट इज. b की वैल्यू 1. सो अगेन 2 एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 1. सो 4 minus 3, 8 minus 1, so 1 divided by 7. Clear? 1 by 7. So this is your answer, and option A is the correct answer, 1 by 7. These questions are so easy student, है कि नहीं? अभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है. So I think this is clear to everyone, right? चलो एक प्रॉब्लम देता हो सॉल्व करने के लिए. दैट इज द योर होमवर्क पार्ट. सो स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क पार्ट. ओके, this is your homework part. M is to n given, find out the ratio. X is to y here and find out the ratio, and there are 4 options. There are 4 options and you choose one option out of 4, right? And I hope that you could easily solve within 30 सेकंड. आप 30 सेकंड के भीतर इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इतना मुझे गारंटी है आपके ऊपर. चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और न्यू इंटरव्यूज़ के साथ. चलो बाय बाय.